نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اپنے بلوغ المرام کے پہلے سبق کا آغاز انشاءاللہ کریں گے، لیکن سبق سے پہلے دو چیزیں ان کا جاننا ضروری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے آج انشاءاللہ الرحمن جو کتاب کے مصنف ہیں ان کا مختصر سا تعارف پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد تو کتاب کے مصنف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد ہے، اور ان کی کنیت ابو الفضل اور لقب حافظ اور شیخ الاسلام اور نسبت اسقلانی ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے اس کے پیروکار ہیں، اور ان کی ولادت ہوئی ہے 12 شعبان 773 ہجری میں مصر کے مشہور علمی شہر قاہرہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ اور ابھی 4 سال کے ہی تھے کہ 777 ہجری میں ان کے والد محترم مصنف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد ہے، اور ان کی کنیت ابو الفضل اور لقب حافظ اور شیخ الاسلام اور نسبت اسقلانی ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے اس کے پیروکار ہیں، اور ان کی ولادت ہوئی ہے 12 شعبان 773 ہجری میں مصر کے مشہور علمی شہر قاہرہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری آواز ہی آنا شروع ہو گئی مجھے۔ اور ابھی 4 سال کے ہی تھے کہ 777 ہجری میں ان کے والد محترم مصنف حافظ ایک ہی کر رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام احمد بن علی بن محمد بن محمد بن مجھے تو آپ احمد خود اپنی آواز سنائی دے رہی ہے، اور ان کی کنیت ابو الفضل اور لقب حافظ اور شیخ الاسلام اور نسبت اسقلانی ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے اس کے پیروکار ہیں، اور ان کی ولادت ہوئی ہے 12 شعبان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہجری میں مصر کے مشہور پرورش اور جو تعلیم و تربیت ہے وہ ان کی کیا ہو گیا میری جی۔ تو امام صاحب کی کہ والد صاحب چونکہ وفات پا گئے تھے، تو لہٰذا ان کی جو پرورش ہے وہ ان کی والدہ نے کی۔ تو پرورش اور تعلیم و تربیت والد کی وفات کے 1 سال بعد 5 سال کی عمر میں موصوف کو مکتب میں بٹھا کر ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ تو امام صاحب بچپن ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے چھوٹی عمر کے اندر ہی بہت سارے جو متون تھے، کتب تھیں، ان کو حفظ کر لیا، جس کی وجہ سے ان کا مقام مرتبہ اپنے جو ہم عمر لوگ تھے ان میں بہت ہی نمایاں ہو گیا۔
اور 9 साल की नहायत कम उम्री में पूरा कुरान पाक उन्होंने याद कर लिया, और कुछ हदीस की कुतुब भी उन्होंने जुबानी याद कर ली। फिर इमाम साहब ने अपना इल्म हासिल किया, और फिर इल्म हासिल करने के बाद जब फारिग हुए तो बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे, ख़ास तौर पर मिस्र के अंदर। तो मिस्र के मुतअद्दिद मुकामात पर हदीस की और फ़िक़्ह की उन्होंने तदरीस की और तालीम दी, लोगों को फैज़याब किया, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। और फिर बहुत सारी कुतुब जो हैं इमाम साहब ने तसनीफ़ फरमाई, जिनमें से अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, बज़्लुल माऊन फ़ी फ़ज़्ल ताऊन, ऐसी तक़रीब तहज़ीब, तहज़ीब तहज़ीब, और उनकी जो सबसे मारूफ किताब है वो सही बुखारी की जो शरह है फ़तहुल बारी, वो इनका सबसे बड़ा इल्मी कारनामा है, और वही इनकी वजह शोहरत बनी। और इमाम साहब की ऐसे ही ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं बुलूगुल मराम, ये भी उनकी एक शानदार तसनीफ़ है, और अल्लाह पाक ने इसको भी बहुत कबूलियत अता फरमाई। तो ये मुख्तसर सा तारुफ इमाम साहब का है, और गाहे गाहे इंशाअल्लाह उनका तारुफ होता रहेगा। और फिर इमाम साहब ने जो ये किताब लिखी है, इस किताब का मुकदमा उन्होंने लिखा, और इस मुकदमे के अंदर इस किताब में किताब को जैसे उन्होंने इसके कुछ रमूज़ व औक़ाफ़ मुकर्रर किए, और कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर लिख दी हैं। अगर उनको हम एक नज़र देख लें तो हमें इस किताब को समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुकदमे का आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा, कि अल्लाह ही के लिए सब तारीफ़ है कि इसकी गुज़िश्ता और आइंदा की इन सब नेमतों पर जो ज़ाहिर भी हैं और बातनी, ज़ाहिरी और बातनी नेमतें हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ है। तो इमाम साहब ने यहाँ पर किताब का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द से, अल्लाह ताला की तारीफ़ से किया है, और ख़ास तौर पर तज़किरा किया अल्लाह ताला की उन नेमतों का जो ज़ाहिरी और बातनी तौर पर हमें मैसर हैं, उनका तज़किरा किया कि जितनी भी नेमतें इंसान के पास हैं वो अल्लाह ताला की ही दी हुई हैं, और उन पर हर इंसान को चाहिए वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सारू फी नुसरति दीनिहि सैरन हसीसा। और दुरूद व सलाम इसके नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसके आल और उसके असहाब पर, जिन्होंने आपके लाए हुए दीन की नुसरत व अशात के लिए अपनी पूरी तंदही और बर्क रफ्तारी का मुजाहरा किया, और ताबीन पर जो अल इल्म के वारिस हुए, और हकीकत है भी यही कि उलमा ही अम्बिया के वारिस, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही अम्बिया के वारिस हैं, अकरिम बिहिम वारिसन व मौरूसा। और क्या खूब है, क्या खूब है ये वारिस, और कितना उम्दा और अच्छा है ये विरसा। अम्मा बाद फ़हादा मुख्तसरुन यश्तमिलु अला उसूलिल अदिल्लतिल हदीसिय्यतिल अहकाम। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद कहते हैं कि ये एक मुख्तसर सी किताब है जो अहादीस में अहकाम शरिया के बुनियादी दलाइल पर मुश्तमिल है। हर्ररतुहु तहरीरन बालिगा, मैंने इस किताब की जो तहरीर करते वक़्त मैंने बड़ी ही जाफिशानी से मैंने काम लिया है, और तनकीद और तहजीब के साथ मैंने इस किताब को लिखा है। लियसीर मन यहफ़ज़ुहु मिन बैन अक़रानिही नाबिगा, ताकि इस किताब को याद करने वाला अपने साथियों के दरमियान वो एक नुमाया शान वाला बन जाए। वला यस्तगनी अन्हु राग़िबुल मुंतही, और इस किताब से कोई भी मुस्तगनी नहीं हो सकता, भले वो मुब्तदी है या वो
मुंतही है, ऐसा मुंतही कि जो रसूख हासिल करना चाहता है, पुख्तगी हासिल करना चाहता है, वो भी इस किताब से मुस्तगनी नहीं हो सकता, यानी ये किताब उसकी ज़रूरत की है, वो इसकी तरफ रुजू करेगा। वक़द बय्यन्तु अक़िब कुल्ली हदीस मिन मन अख़रजहु मिन अल-अइम्मा, और मैंने हर हदीस नकल करने के बाद इस मुहद्दिस का नाम भी बयान कर दिया जिसने उम्मत की खैर खाही के लिए इस हदीस को रिवायत किया है। फल मुराद बिस्सबअती, और जहां मैं 7 लफ्ज बोलूंगा, 7 का लफ्ज बोलूंगा, बिस्सबअ, सबा का मतलब 7, तो उससे मेरी मुराद कौन होंगे? यानी इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इब्न माजा, यानी जिनको हम कहते हैं सिहा सित्ता, तो 6 वो होंगे और एक इमाम अहमद का उसमें इजाफा हो जाए, तो लिहाजा सबा से मेरी मुराद ये 7 लोग होंगे। और बिस्सित्ता, और जब मैं कहूँगा इस हदीस को 6 ने निकाला है, तो इसका मतलब होगा मन अदा अहमदा, के इमाम अहमद के अलावा 6 ने इसको निकाला है, यानी कि 7 में से हम इमाम अहमद को निकाल लेंगे तो बाकी 6 बच जाएंगे। और बिलखमसती, और जब मैं कहूँगा 5, तो उससे मेरी मुराद होगी कि बुखारी और मुस्लिम को निकाल दो और बाकी 4, यानी कि अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुस्नद इमाम अहमद, तो ये 5 मेरी मुराद हुई। वक़द अक़ूलु अल अर्बआ, और जब मैं कहूँगा 4, तो उससे मुराद हाँ, अल अर्बअतु व अहमदु बिल अर्बआ, और जब मैं कहूँगा कि मेरी मुराद 4 हैं, तो व अहमदु बिल अर्बा मन अदा अस्सलासल अव्वल, तो फिर इससे मुराद मेरी क्या होगी? मेरी मुराद इससे होगी कि पहले 3 इमाम, यानी इमाम अहमद, बुखारी और मुस्लिम के अलावा बाकी आइम्मा मुराद होते हैं। और अखरजहु सलासा से मेरी मुराद तीनों और आखिरी के अलावा बकिया 3 इमाम मुराद हैं, यानी इमाम अबू दाऊद, नसाई और तिरमिज़ी। और मुत्तफ़क़ुन अलैह, और मुत्तफ़क़ुन अलैह से मुराद बुखारी और मुस्लिम है, और बसा औकात में बुखारी और मुस्लिम के अलावा दूसरे आइम्मा का जिक्र छोड़ देता। तो जिनका मैंने जिक्र किया है, तो इन सूरतों के अलावा बाकी तमाम सूरतों में रिवायत करने वाले आइम्मा का जिक्र हर मौका पर नुमाया तौर पर मैं कर देता। और मैंने इस किताब का नाम रखा बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, तो मैंने इस किताब का ये नाम रखा है। बुलूग का मतलब पहुंचना, अल मराम का मतलब है मकसद, मिन का मतलब से, अदिल्ला तिल अहकाम, अदिल्ला जमा दलील की, तो के अहकाम की दलीलों के साथ मकसद को पहुंचना, तो ये इस किताब का नाम है। वल्लाह अस्अलु अल्लाह यजअल मा अलिमनाहु अलैना वबालन, और आखिर में अल्लाह ताला के हुजूर मैं दुआ करता हूँ कि वो हमारे इल्म को हमारे लिए वबाल ना बनाए, बल्कि अपने पसंदीदा और महबूब अमल की तौफीक से हमें नवाज दे। तो ये इमाम साहब ने अपनी किताब का तारुफ थोड़ा सा करवा दिया है कि मैंने इस किताब को तसनीफ किया है, तो इसमें मैंने बड़ी जांफशानी से काम लिया है, बड़ी तनकीद से काम लिया है, और मैंने इसमें जो अहकाम की दलीलें हैं उन सबको मैंने इसके अंदर जिक्र कर दिया है, ताकि अहकाम पर इंसान अमल करे। कैसे अमल करे? सुन्नत के मुताबिक करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करे। फिर मैंने जहाँ जहाँ से वो हदीस ली है, हदीस के आखिर में मैंने उसका तज़किरा कर दिया है। ख़ास तौर पर 7 जो आइम्मा हैं, तो उनका हवाला मैं दूंगा, जिनमें इमाम अहमद हैं और इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी और इब्ने माजा। तो कहीं पर मैं कहूँगा मुत्तफ़क़ुन अलैह, तो इसका मतलब बुखारी मुस्लिम है। कहीं पर मैं कहूँगा 6 कहूँगा, कहीं पर 5 कहूँगा, कहीं पर 4 कहूँगा। तो ये उन्होंने अपनी इस्तिलाहात जो हैं, रमूज़ व औक़ाफ़ जो हैं, रमूज़ जो हैं वो बता दी हैं। फिर उन्होंने बताया मैंने इस किताब का नाम रखा है बुलूगुल मराम, और बुलूगुल का मराम का मतलब है कि अहकाम की दलीलों के साथ मकसद को
पहुंच जाना। और आखिर में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि जो हम ये किताब पढ़ने लगे हैं, किताब का हमने आगाज किया है, तो ये चूंकि हम इल्म हासिल कर रहे हैं, और इल्म जो है वही इंसान के काम आएगा, जो नाफे होगा, बसूरत दीगर इल्म ही इंसान के लिए वबाल बन जाएगा। तो ऐसा इल्म जिस पर इंसान अमल ना करे, उसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारे, तो वो इल्म इंसान के लिए वबाल बन जाता है। तो जैसा कि बाज़ अहादीस में आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, उनमें से एक आलिम भी होगा, और उस आलिम को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जो पहुंचेगा तो उससे पूछा जाएगा तुमने क्या किया, तो वो कहेगा कि मैंने इल्म हासिल किया। तो उससे कहा जाएगा तू झूठ बोलता है। मफहूमन ये हदीस आपके सामने बयान की जा रही है। वो कहेगा कि मैंने इल्म हासिल किया, फिर उसकी तबलीग की, तशरीह तौज़ीह की। अल्लाह पाक कहेंगे तू झूठ बोलता है, बल्कि तूने तो इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग कहें कि बड़ा आलिम है और तुम्हारी इल्म के चर्चे हों और शोहरत हो। तो लिहाजा फिर वो ऐसे आलिम को क़यामत के दिन जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो इस आलिम के लिए इसका इल्म नाफे नहीं हुआ, फ़ायदा मंद और मुफीद ना हुआ, बल्कि उसके लिए वबाल जान बन गया। इसलिए इमाम साहब ने अल्लाह ताला से ये दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म को नाफे बनाए और इस इल्म को हमारे लिए वबाल ना बनाए। तो इमाम मौसूफ ने अल्लाह ताला की जनाब से इस बात का सवाल किया तो हमारे इल्म को हम पर वबाल ना बनाए। अब ये सवाल कि इल्म कब वबाल बनता है, तो इसका जवाब यही है कि जब इस पर अमल ना किया जाए, क्योंकि इल्म या तो हमारे हक में हुज्जत होगा या फिर हमारे खिलाफ हुज्जत होगा। चुनाचे जब हम इल्म पर अमल करेंगे तो ये हमारे लिए हुज्जत होगा, वगरना ये हमारे खिलाफ हुज्जत होगा। तो इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी है। आपने फरमाया अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, ये कुरान या तो तेरे लिए हुज्जत होगा या फिर तेरे खिलाफ हुज्जत होगा। तो ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान जब तक अल्लाह ताला के सामने 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा, उस वक्त तक कदम भी नहीं हिला सकेगा। तो उन 5 सवालों में से एक सवाल ये है कि जो तूने इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल कितना किया, कितना अमल किया। तो लिहाजा उससे ये सवाल किया जाएगा। तो अब इल्म इंसान के पास थोड़ा है ही ज्यादा, तो असल मकसूद तो उससे अमल है। तो लिहाजा इसलिए इमाम साहब ने यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह जो हमारा इल्म है उसको हमारे लिए नाफे बना, उसको हमारे लिए वबाल ना बना, यानी उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हमारा इल्म क़यामत के दिन हमारे हक में गवाही बन जाए। इसके बाद हम किताब का आगाज करते हैं। पहली किताब किताबुत तहारा है। किताबुत तहारा यानी पाकी हासिल करने के अहकाम व मसाइल इसके अंदर बयान किए जाएंगे। पाकी तहारत, तो इसके अहकाम इसके अंदर बयान किए जाएंगे। चूंकि तहारत इस्लाम का जो इम्तियाज है, तहारत का इस्लाम हुक्म देता है। पाक साफ और ताहिर रहने को इस्लाम पसंद करता है। इसलिए ख़ास तौर पर इस्लाम ने तहारत का बहुत ज़ोर दिया है, और दीगर जो इस वक्त नज़रियात हैं, मज़ाहिब हैं, उनकी बनिस्बत इस्लाम तहारत का बहुत ज़्यादा हुक्म देता है। उनके मुकाबला में इंसान को ज़ाहरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी पाक साफ रहने की तरगीब देता है, पाक साफ रहने को पसंद करता है, पाक साफ रहने वालों से कि रहने वालों की फजीलत बयान करता है। तो इसलिए इमाम साहब ने भी अपनी किताब का आगाज़ किताब तहारा से किया है, तहारत के मसाइल, पाकी के मसाइल। तो अब तहारत से किताब का आगाज़ क्यों किया है, इसकी वजह यही है कि जिन फुकहा और मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों को फ़िक़ही अबवाब के तर्ज पर मुरतब किया है, तो वो अपनी किताबों का आगाज़ तहारत के बयान से करते हैं। और इसकी दो वजह होती हैं, दो वजूहात की बुनियाद पर वो अपनी किताब का आगाज़ किताब तहारा से पाकी और तहारत के मसाइल को बयान करने से करते हैं। पहली वजह यह है कि तहारत
नमाज की सबसे ज्यादा मुअक्कद शर्त है। इसकी पहली दलील ये अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। क्या लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसाह करो और अपने पांव टखनों तक धो लो। तो कुरान पाक की इस आयत में जो अल्लाह पाक ने नमाज के लिए जो जिक्र किया है कि वो ये है कि तुम अपनी तहारत करो, अपने चेहरे को, हाथों को, कोहनियों को, पाँव को धो। तो ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इदा अहदथ हत्ता यतवस्सा, कि जब तुम में से कोई बेवुजू हो जाए तो अल्लाह ताला इसकी नमाज को हरगिज कबूल नहीं करते यहां तक कि वो वुजू करे। तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जब इंसान तहारत हासिल कर लेता है तो वो गोया के खाली हो जाता है। तो अब वो तखलिया कर लेगा, अपने आप को खाली करेगा, पाक साफ करेगा, तो फिर वो अपने आप को मुज़य्यन और आरास्ता करेगा। यानी पहले बदन को नजास्तों से, नापाकियों से खाली करेगा, फिर इसको इबादत से मुज़य्यन करेगा। तो इसलिए ये एक फितरी तरतीब है, पहले वो पाकी और तहारत हासिल करे, फिर उसके बाद अपने आप को खूबसूरत बनाए और अपने आप को मुज़य्यन करे। तो लिहाजा इसलिए फुकहा मुहद्दिसीन अपनी किताब का आगाज किताब तहारा से करते हैं ताकि इंसान पाक और साफ हो जाए, फिर उसके बाद वो इबादत से, नमाज से अपने आप को मुज़य्यन करेगा, आरास्ता और पैरास्ता करेगा। अब तहारत जो है उसकी दो किस्में हैं। तहारत की दो किस्में हैं। एक तहारत है जिसको हम मानवी तहारत कहते हैं, और एक तहारत है जिसको हम हिस्सी तहारत कहते हैं। यानी एक ज़ाहिरी तहारत है और एक बातनी तहारत। अब जो मानवी या बातनी तहारत है, इससे मुराद क्या है कि इंसान अपने अकायद को दुरुस्त करे, अपने अकीदे की इस्लाह करे, कि उसके अकीदे में, उसके दिल दिमाग में शिर्क ना हो, निफाक ना हो, हसद बुग़ज़ कीना ना हो, शक और रैब ना हो। ये जो बुरी सिफात हैं ये उसके अंदर ना हो। और अगर किसी के अंदर ये है तो इसका मतलब ये है कि उसका बातिन साफ नहीं है। और जबकि बातिन की जो तहारत है, बातिन का जो पाक और साफ होना है, ये जाहिर के पाक साफ होने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अकीदे का ताल्लुक बातिन से है, ईमान का ताल्लुक बातिन से है, निफाक का ताल्लुक बातिन से है, ये हसद बुग़ज़ और कीना, अदावत, दुश्मनी, इसका ताल्लुक बातिन से है। और ये सारे के सारे गुनाह हैं, ये स्याहियां हैं। और अगर इंसान इनसे पाक और साफ नहीं होगा तो फिर उसका नमाज पढ़ना, इबादत करना भी उसको फायदा नहीं देगा। क्योंकि शिर्क जो है ये निजासत है, गंदगी है, गलाजत। इसलिए कहा गया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि जो मुशरिक होता है वो नजस होता है। तो इसका मतलब एक मुशरिक जो है वो बज़ाहिर उसने कपड़े बड़े उजले पहने हो, बड़ा साफ सुथरा हो, नहाया धोया हो, बड़ी उसने खुशबुएं लगा रखी हो, लोग उससे बड़े मुतासर हो रहे हो, लेकिन उसके अकीदे में तो शिर्क है ना। तो लिहाजा अब वो शिर्क की जो गलाजत है, गंदगी है, उसकी वजह से ये शख्स नजस है। अल्लाह ताला ने इसको नजस कहा। तो इसका मतलब ये नजस है मानवी तौर पर, बातनी तौर पर। तो लिहाजा अब इसका ये अपने बातिन को ताहिर करना, अपने बातिन को साफ करना, अपने बातिन को धोना, ये बहुत जरूरी है। ये तो जाहिर से भी ज्यादा जरूरी है। तो लिहाजा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहले इस बातनी जो
गलाजत होती है, ये गुनाह होते हैं, वो इन इन इनकी सफाई करते हैं, इनको धोते हैं वो। और जब एक इंसान बातनी तौर पर, मानवी तौर पर वो पाक और साफ हो जाता है, फिर वो जो है एक अच्छा मुसलमान बनता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है। फिर ही वो अल्लाह ताला की सही मार्फत और पहचान हासिल करता है। और अगर किसी शख्स को ये बातनी और मानवी तहारत हासिल ना हो, यानी उसके अकायद की इस्लाह ना हो, उसके दिल की इस्लाह ना हो, तो फिर वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। और जो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, वो कभी भी एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ऐसी ही तहारत है जिसको ज़ाहिरी तहारत कहते हैं, हिस्सी तहारत कहते हैं। तो इससे मुराद यही है जो बोलो बराज है, जो बेवजू होना है। तो वो जो ज़ाहिरी तौर पर कपड़ों पर कोई चीज़ लगी हुई है, बदन मैला कुचैला है, पेशाब पखाना किया है उसने, तो फिर उसके बाद जो तहारत है इसको हम कहेंगे जो तहारत हिस्सिया, यानी ज़ाहिरी तहारत। तो लिहाजा इमाम साहब ने किताब तहारा से किताब का आगाज करके यही बात समझाई है कि इंसान का जाहिर भी पाक हो और बातिन भी पाक हो। जब जाहिर और बातिन दोनों पाक हो जाएंगे तो फिर ही उसकी इबादत वो कबूल होंगी, वो अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा हासिल करेगा, उसका अल्लाह के यहाँ कोई मुकाम मर्तबा होगा। और अगर वो शख्स दोनों लिहाज से पाक और साफ नहीं है, तो फिर कितनी ही चाहे इबादत भी कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो अल्लाह के यहाँ वो दर्जा हासिल नहीं कर सकता। चूंकि एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। बेशक अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ, तुम्हारे अमवाल की तरफ, तुम्हारी सूरतों की तरफ, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह पाक देखते हैं तुम्हारे दिलों की तरफ, तुम्हारे अमाल की तरफ। इसका मतलब इस हदीस से वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने बातिन को पहले देखना है, बातिन को देख करके फिर आमाल को देखना है। तो अगर बातिन पाक और साफ है तो फिर उसके आमाल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होंगे। और अगर बातिन साफ नहीं है, उजला नहीं है, तो फिर उसके आमाल अल्लाह की बारगाह में वो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं करेंगे। तो किताब तहारा का आगाज जो होता है, उसका पहला बाब है बाबुल मियाँ। बाबुल मियाँ यानी पानियों का बाब। तो इसमें जो पानी के मसाइल हैं वो बयान किए जाएंगे। चूंकि मसला तहारत का है, तो तहारत जो होती है वो दो चीज़ों से होती है। जदीद दौर के मुताबिक उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हो गई हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं जिनसे इंसान वो तहारत हासिल करता है। नंबर एक, पानी से तहारत हासिल करता है, और नंबर दो, मट्टी से तहारत हासिल करता है। यानी मट्टी और पानी, ये दो चीजें हैं जिनसे इंसान तहारत हासिल करता है, पाकी हासिल करता है। तो पहला बाब बाबुल मियाँ, पानियों का बाब। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज मियाँ है, ये माँ उनकी जमा है। माँ उन कहते हैं पानी को अरबी में, अरबी में पानी को माँ उन कहते हैं, तो ये उसकी जमा है। तो पानियों का बाब। अब सवाल ये है कि यहाँ पर वो पानी तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर पानियों क्यों इस्तेमाल किया, जमा क्यों इस्तेमाल लाए हैं? तो उसका सबब ये है कि पानी तो एक ही होता है, लेकिन जो पानी के मसादिर और मनाबे जो है ना, वो मुख्तलिफ होते हैं। तो उन मुख्तलिफ मनाबे और मसादिर के लिहाज से पानी की मुख्तलिफ अकसाम है। मिसाल के तौर पर बारिश का पानी है, दरियाओं का पानी है, चश्मों का पानी है, कुओं का पानी है, नदी और नालों का पानी है। तो लिहाजा अब ये जो मुख्तलिफ मनाबे और मसादिर हैं, यानी कि पानी हमें मुख्तलिफ जगहों से हासिल होता है, तो इसके लिहाज से पानी की मुख्तलिफ अकसाम है, वगरना पानी तो एक किस्म का ही होता है।
تو لہذا پانی انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہے، بلکہ ہر جو زندہ چیز ہے تو اس کے لیے پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو پانی کا حصول سب سے زیادہ آسان بھی ہے، اور ہر زندہ جاندار اسی پانی کا سب سے زیادہ محتاج بھی ہے۔ اس اعتبار سے پانی بے حد قیمتی بھی ہے، اور بسا اوقات پانی کی جو تھوڑی سی مقدار بھی انسان کے لیے بڑی قیمتی ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا پہلی جو حدیث ہے اس باب کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه والحل میتته اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحری، سمندر کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، والحل، اور حلال ہے، میتتہ، اس کا مردار، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اخرجہ الاربعۃ وابن اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبہ واللفظ له، اس حدیث کو ائمہ اربع نے، چار ائمہ نے روایت کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ واللفظ له، یہ الفاظ جو ہیں اس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ ابن ابی شیبہ کے لیے ہیں۔ وصححہ، اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے، والترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان دو ائمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ورواه مالک والشافعی واحمد، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مالک نے، امام شافعی نے، اور امام احمد نے، تو ان تینوں ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کا ایک خاص پس منظر ہے، یعنی اس حدیث کا ایک سبب ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں نا، تو وہاں پر ہم ان کے اسباب نزول پڑھتے ہیں، سبب نزول جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کا سبب کیا تھا۔ تو ایسے ہی احادیث کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، تو لہذا ان کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجہیں ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دریا میں سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں ہم دریاؤں میں جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اس وقت پانی نہیں ہوتا، تو اب ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، تو کیا ہم جو دریا کے پانی سے ہم وضو کر لیا کریں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کا پانی بھی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک یہ بات تھی کہ اب جو سفر ہوتا ہے سمندری سفر، تو اس سمندری سفر میں تو پینے کا جو پانی وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، چونکہ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو پی نہیں سکتے، تو لہذا پینے کے لیے وہ پانی الگ سے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اب جو سمندری سفر ہوتا ہے وہ کئی دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہفتوں بھی لگ جاتے ہیں، تو اب نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اب وضو کرنا ہے، تو اب وضو کرنے کے لیے اگر وہ پانی استعمال کریں گے کہ جس کو پینے کے لیے لائے ہیں، تو پھر پانی ختم ہو جائے گا، سمندر کا پانی پی نہیں سکیں گے، تو لہذا وضو کرنا تھا، تو وضو اب کیسے کریں؟ اب دوسرا پانی بچتا وہی دریا کا، سمندر کا پانی ہے،
تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھی سمندر کا پانی پتہ نہیں پاک ہے پاک نہیں ہے، اس سے ہم وضو کریں کہ نہ کریں، یہ بات ان کے پیش نظر تھی۔ تو لہذا ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس سوال میں جو ایک صورتحال تھی آپ نے اس کا بھی جواب دیا، بلکہ ایک جو بعد میں صورتحال پیش آ سکتی تھی یا اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا۔ اور وہ کیا کہ ایک تو سمندر کا دریا کا پانی پاک ہے، اور دوسری بات یہ ہے والحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی حلال ہے، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرما دی۔ تو اب گویا کہ اس حدیث کے اندر جو دو باتیں بیان ہوئی ہیں، دو مسائل اس کے حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ نمبر ایک کہ پانی جب تک اپنی اصل اور قدرتی حالت میں ہو، وہ جس طرح کا بھی ہو، چاہے بارش کا ہو یا دریا کا ہو، ندیوں کا ہو، کنووں اور چشموں کا ہو، وہ خود بھی پاک ہے اور اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو یا کسی گندگی اور نجاست کو دھونا ہو تو وہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا، اور دوسرا اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا کہ دریا میں پیدا ہونے والی جو مچھلیاں ہیں، اگر وہ بنا ذبح کیے وہ مر جاتی ہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ یعنی کہ سمندر میں جو مچھلیاں، دریا میں کوئی مچھلی ہے وہ مر گئی ہے تو لہذا عام طور پر تو مردار نہیں کھایا جاتا، تو جبکہ وہ مچھلی مر گئی ہے اور وہ اپنی طبی موت مری ہے تو لہذا اس مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ تو اس کے اندر یہ دو باتیں بتائی گئی ہیں، دو باتیں سمجھائی گئی۔ ہاں جی، تو اب یہ جو حدیث کو ہم نے پڑھا، اس میں سے جو ہمیں مسائل، جو ہمیں اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو اس سے ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں۔ نمبر ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین علم کے بڑے حریص ہوتے تھے۔ جن باتوں کا سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کیا تھا، اب ایسے سوال آج کے دور میں اگر کوئی شخص کرتا ہے، خاص طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہوں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے سوالات کرنا بیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنی اسرائیل کی صفات بتائی ہیں اور کثرت سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے تفہیم کے لیے، سمجھ کے لیے مسائل، ایک ہوتا ہے بیجا قسم کے سوال اور بال کی کھال اتارنے کے لیے سوال۔ تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں صحابہ کرام نے ضرورت کے مطابق سوال کیے ہیں تو تفہیم کے لیے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دریا وغیرہ کا پانی مطلق پاک ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی اگر نجاست گر جاتی ہے اور وہ نجاست اتنی ہو کہ اس پانی کو وہ بدل دے تو ہاں پھر وہ پانی پاک نہیں رہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا طریقہ بھی ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل نے ایک سوال کیا لیکن بعد میں اس کو ایک اور صورتحال پیش آ سکتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ تو جو جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ ساری صورتحال کو سمجھتا ہے، اور اگر وہ بعد میں پیش آنے والی صورتوں کا بھی جواب دیتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا احسن انداز ہے۔ اور پھر معلوم ہوا کہ دریا اور سمندر کی سب مچھلیاں حلال ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرما دیے، کیونکہ لفظ میتہ عام ہے، کیونکہ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں کیا ہیں، وہ حلال ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک قاعدہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر حلال شے پاک ہے، لیکن ہر پاک شے حلال نہیں ہوتی، اور ہر نجس شے
حرام ہے، لیکن ہر حرام شے نجس نہیں ہوتی۔ تو اور وہ چیزیں جو پاک تو ہو مگر حلال نہ ہو، جیسے زہر ہے، زہر جو ہوتا ہے، بھنگ، افیون اور اس طرح کی اور چیزیں، تو یہ اشیاء پاک تو ہے مگر نجس نہیں ہے، لیکن مضر ہونے کی وجہ سے حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے حرام ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر پانی میں مردہ مچھلی کی وجہ سے کوئی تغیر آ گیا ہو تو وہ پانی پاک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں پانی ایک حلال اور طاہر شے کی وجہ سے اس میں تغیر پیدا ہوا ہے، تو لہذا یہ اتنا مضر نہیں، جیسے پانی میں دیگر چیزیں مل جاتی ہیں، تو یہ آگے حدیث آئے گی تو وہاں پر بھی یہ مسائل بیان ہوں گے کہ پانی کون سا پاک ہوتا ہے اور کون سا پاک نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں مزید تو یہ ہمیں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو ایک دو اور باتیں یہاں پر کہ اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حدث، حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر سے مراد حدث کہتے ہیں کہ ایسی نجاست جو بظاہر نظر نہ آتی، ایسی نجاست جو بظاہر نظر نہ آتی ہو، جیسے ہم بے وضو ہوتے ہیں تو انسان کی ہوا کا اخراج ہوتا ہے، تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جس میں آدمی کو نہانا پڑے، غسل کرنا پڑے، اسے کہتے ہیں حدث اکبر، یعنی کہ بڑا حدث، ٹھیک ہے۔ اور نجاست کہتے ہیں جب بظاہر کوئی چیز گندگی کپڑے پر لگی ہو تو اس کو نجاست کہیں گے، جیسے پیشاب پخانہ لگ گیا ہے کپڑے وغیرہ پر تو اس کو کہیں گے نجاست۔ تو حدث اصغر، حدث اکبر اور نجاست تو ان تمام چیزوں کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو پانی ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ وہ طہور ماؤہ والحل میتہ، پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال۔ اس کے بعد دوسری حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء اخرجہ الثلاثہ وصححہ احمد۔ جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء، بے شک پانی، طہور، وہ پاک کرنے والا ہے، لا ینجسہ، نہیں نجس کرتی اس کو، شیء، کچھ بھی، اس کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی، پانی پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو نکالا ہے ائمہ ثلاثہ نے، ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث کو نکالا ہے، یعنی کہ امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے، وصححہ احمد، اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ استعمال ہو الماء، تو یہ پانی کی تمام جو انواع و اقسام کو شامل ہے یہ، اور طہور یعنی کہ مطہر یعنی یہ پاک کرنے والا ہے۔ اور پانی میں تو گرنے والی اب جو ناپاکی ہوتی ہے، پانی میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو اب وہ اس پانی کو خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس کے بارے میں آگے احادیث آئیں گی انشاءاللہ، تو ان کو بھی ہم ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر سب پر جو ہے ان کی توضیح اور تشریح کریں گے۔ حدیث نمبر 3 کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں۔ ان ابی امامۃ الباہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
अखरजहु इब्न माजा व ज़अफ़हु अबू हातिम वलिलबैहक़ी अलमाउ तहूरुन इल्ला इन तग़य्यरा रिहुहु व तअमुहु औ लौनुहु बिनजासतिन तहदुसु फीही। हजरत अबू उमामा बाहिली से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल माआ, बेशक पानी, ला युनज्जिसुहु शैउन, उसको कोई चीज नजस नहीं करती, नापाक नहीं करती, इल्ला मगर, मा गलबा, जो चीज गालिब आ जाए, अला रिही, इसकी बू पर, व तामिही, इसके जायके पर, व लौनिही, और इसके रंग पर। तो जो चीज गालिब आ जाएगी उसकी बू पर, उसके जायके पर और उसके रंग पर। अखरजहु इब्न माजा, इस हदीस को रिवायत किया है इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने, वज़अफ़हु, और इसको ज़ईफ कहा है अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने। और इमाम बहकी की रिवायत में क्या, वलिल बैहक़ी, और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है, अलमाउ तहूरुन, पानी जो है वो पाक करने वाला है, इल्ला, मगर, इन तग़य्यरा रिहुहु, मगर उसकी मुतग़य्यर हो जाए उसकी बू, व तामुहु, उसका जायका, औ लौनुहु, उसका रंग, बिनजासतिन, नजासत की वजह से, तहदुसु फीही, जो इसमें गिर जाए। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में यह है कि पानी पाक और पाक करने वाला होता है, सिवाय इस सूरत के कि इसकी बू या इसका जायका या इसका रंग इस नजासत की वजह से बदल जाए जो इसमें गिर पड़े। तो अब इन दोनों अहादीस के अंदर जो बात बयान की जा रही है वो यही है कि पानी नापाक नहीं होता, पानी को कोई चीज नापाक नहीं करती, लेकिन अगर पानी का रंग, पानी की बू और पानी का जायका, ये तीन चीजें बदल जाएं, तो तीन चीजें बदल जाएं या तीनों में से कोई एक चीज बदल जाए, तो फिर जो है वो पानी पाक नहीं रहता, फिर वो पानी पाक नहीं रहता। अच्छा, अब ये पहली बात यहाँ पर ये जहन में रखी जाए कि ये जो चीज गिरेगी ये नापाक चीज की बात हो रही है, पाक चीज की बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर जैसे पीछे बात हो रही थी, जब इंसान नहाता धोता है तो साबन लगाता है, तो साबन अगर पानी में गिर जाए, साबन के झाग ही गिर जाए तो उससे भी तो रंग तब्दील हो जाता है। या मिसाल के तौर पर दूध के कोई कतरात पानी में गिर जाते हैं तो उससे भी रंग तब्दील हो जाता है। मट्टी जो है वो पानी के अंदर मिल जाए तो उससे भी पानी का रंग तब्दील हो जाता है। तो अब इस सूरत में तो भाई ये सारी चीजें पाक है ना, तो पाक चीजों के गिरने से उसका रंग अगर बदलता है तो उससे पानी नापाक नहीं होगा। तो ये बात हो रही है बुनियादी तौर पर कि जब पानी के अंदर कोई ऐसी नजासत गिरेगी, यानी कि जो नापाकी गिरेगी, तो उसकी वजह से उसका जो है ना रंग बदले, जायका बदले, बू बदले, या तीनों में से कोई एक चीज बदले, तो ये उसकी बात हो रही है, ये पाक चीजों के गिरने की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इस हदीस में बुनियादी तौर पर जो मसला बयान किया गया है वो ये है कि पानी में जो शय भी गिर जाए वो इसको नापाक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ शय उन जो नकरा नफी के तहत है, जो अमूम का फायदा दे रहा है। लेकिन ये बात मारूफ और मालूम है कि ये अमूम मुराद नहीं, और इस बात में कोई शक भी नहीं, क्योंकि अगर पानी में इतनी मिकदार में निजासत गिर जाए जो इसको मुतगय्यर कर दे तो ये पानी बिल इजमा नजस कहलाएगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास जो जैसे घी में गिर कर मर जाने वाले चूहे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकूहा मा हौलहू, इस चूहे को और इसके इर्द गिर्द घी को निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि इर्द गिर्द का घी लामहला वो नजस हो चुका होता है। क्योंकि जब चूहा मरता है तो खुद भी बदबू दार हो जाता है और इर्द गिर्द की शय को भी बदबूदार कर देता है। तो लिहाजा ये रिवायत इस बात की दलील है कि जब गिरने वाली निजासत तगय्युर पैदा कर दे तो पानी नापाक हो जाता है। अब घी की भी
दो सूरतें होती हैं, या तो वो जमा होता है या वो बिल्कुल माया होता है। जब वो माया हो तो उसकी फिर उसके बाद तो सारा घी खराब हो जाएगा। और अगर वो जमा है, खून वो जो घी है, और फिर उसके बाद उसमें ऊपर चूहा गिरता है, तो फिर जाहिर बात है उसको दाएं बाएं उसको खुरच कर फेंक देने से ही मसला हल हो जाएगा, सारा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हदीस से जो हमें बातें मालूम हुई उनको तरतीब से हम बयान करें तो ये, पानी खुद भी पाक है और किस्म की नजासत को पाक करने वाला है, चाहे वो नजासत कैसी ही हो। और फिर हमें ये बात भी मालूम हुई पानी में असल इसका पाक होना है, लिहाजा शक की सूरत में पानी को पाक ही तस्वर किया जाएगा। और पाक शय से आने वाला तगय्युर उसको नापाक नहीं करता है। और ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पर अब कोई सोता है, फिर वो अ, उसने पानी अगर लेना हो, कोई चीज़ ना हो बर्तन वगैरह से, तो सोकर उठते ही पानी में हाथ डालना भी इसको नापाक नहीं करता, क्योंकि जब तक हाथ के बारे में तो बिल्कुल वाज़े तौर पर ना हो तो फिर वो उसको नापाक नहीं करेगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार हाथ धोने से कबल पानी में हाथ डालने से मना जरूर किया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ये हुक्म इसलिए है कि सोकर उठने वाले का हाथ पानी को नापाक कर देता है। लिहाजा इस हदीस के अमूम की वजह से इसे पानी के वो तहूरियत पर ही उसको बाकी रखा जाए। और ये भी मालूम हुआ कि इजमा के जरिए सुन्नत में तखसीस कर सकते हैं, जैसा कि इस हदीस से इस निजासत की तखसीस बिल इजमा है जो पानी को मुतगय्यर कर दे। तो पानी की तहूरियत से निजासत और नापाकी की तरफ वो कब मुंतकिल होता है। तो इन दोनों रिवायात में जो बात मजीद बताई गई है, यानी कि जो अब इसमें जो तीन जो चीज़ें बताई गई हैं, तीन जो खासियात बताई गई हैं, तो जो मजीद बतलाई गई वो ये कि पानी तहूरियत से नजासत की तरफ कब मुंतकिल होता है, मा गलबा अला रीही व तामीही व लौनिही। तो इससे मुराद वो शय है जिसकी वजह से पानी मुतगय्यर हो जाए, बदल जाए, तब्दील हो जाए। पानी निजासत की तरफ तीन सूरतों मुंतकिल होता है: जब इसकी बू इसके अंदर रच बस जाए, जब इसका जायका खराब हो जाए, और जब इसका रंग बदल जाए, तब वो पानी नापाक तस्वर होगा। लिहाजा अगर पानी में इतनी निजासत गिरी कि इसने पानी के इन तीन औसाफ या किसी एक वस्फ को मुतगय्यर कर डाला, तो वो पानी नापाक कहलाएगा। तो इस बाब में ये ज़रूरी नहीं कि इन तगय्युरात का एहसास व इदराक हर एक को हो, बल्कि अगर चंद लोगों को भी वो तगय्युरात महसूस हों तो फिर वो पानी नापाक शुमार होगा। अलबत्ता ये शर्त है कि वो लोग, उनको वो शक का मर्ज लायक ना हो। जैसे बाज लोग होते हैं वो तो वजू ही बहुत देर तक करते रहते हैं और वो उनको शक हो जाता है, तो शक की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जब यकीन हो जाएगा और उनको लोग देख लेंगे और फिर वाकई उनके अंदर वो तीनों सिफात, तीनों में से कोई एक पाई जाएगी, तो उस वक़्त पानी, जैसा कि आजकल शहरों में ये बहुत मसला होता है कि पानी के पाइप और वो उनमें पानी ठहर जाता है, या फिर वो सेवरेज सिस्टम जो है कहीं मिला होता है, तो उसकी वजह से पानी जो है वो उसके औसाफ ये बदल जाते हैं। तो अब अगर वाकयातन उसके अंदर वो निजासत है, बदबू है, एक बंदे की नाक बंद है, जुकाम हुआ पड़ा है, उसको समझ नहीं आ रही है, नहीं, बल्कि वो बंदा के जो हसास है और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से महसूस कर सकता है, उसका एतबार होगा, उस आदमी का एतबार नहीं होगा कि जिसके ये हिस्सियात इतनी काम नहीं कर रही हैं। तो लिहाजा पानी का मसला इंतहाई नाजुक है, चूंकि पानी पाक है और इससे पाकी हासिल करनी है। अगर पानी खुद पाक नहीं होगा तो उससे पाकी और तहारत हासिल नहीं की जा सकेगी। इसलिए पानी पाक होना चाहिए और उसके अंदर उसका बू, जायका और रंग जो है उसके बारे में तहकीक कर लेनी चाहिए, तसल्ली और तशफ़ी कर लेनी चाहिए। तो आगे जो अहादीस हैं, वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, तो अगली अहादीस भी इससे मुतल्लिक़ ही हैं। कितना पानी होगा तो पानी वो जो है निजासत को उठा सकता है, क्या उसकी कोई मिकदार है, मिकदार नहीं है, तो उसके बारे में आगे अहादीस आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान तो वो हम अगले बुध को
वो मसाइल हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अहादीस को पढ़ने, समझने और उन पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, तो कुछ वो जो हिदायत थी आप लोगों को वो पिछली दफ़ा दे दी गई थी, तो कुछ लोगों ने सवालात भी किए थे। तो अब हमने जो सबक पढ़ा है उस सबक के बारे में जो भी किसी का कोई सवाल हो, इश्काल हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप वो जो टेलीग्राम का ग्रुप बना है उसमें सवाल लिखकर भेज सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा उर्दू में ही लिखें ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो वो हफ्ते में एक दिन खुला करेगा, फिर आप अपना सवाल नोट करवा सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसी ही क्लास में सब लोग अपनी हाजिरी लगाया करें। हाजिरी का जो तरीका एडमन ने मुकर्रर किया उसके मुताबिक। और फिर जो हमारी ये किताब है उसके मुख्तलिफ लेवल होंगे। पहला लेवल वो जो 24 हफ्तों पर मुश्तमिल है। और ऐसे ही आप लोगों का इम्तिहान भी हर हफ्ते भी हुआ करेगा। और फिर अ, ये जो आपको सर्टिफिकेट भी इसका अता किया जाएगा ताकि आपके पास एक सनद रहे कि हमने ये कोर्स किया है, पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें इदारे की तरफ से आपके लिए हैं। तो लिहाजा आप क्लास को पढ़ें और इदारे के साथ चलें। अल्लाह ताला हम सब का पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो हदीस पढ़ना बायस बरकत है, बायस खैर है। तो अल्लाह ताला हमें वो सारी खैर और खूबियाँ अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर। और जब अल्लाह हमें मौत दे ईमान वाली, इस्लाम वाली, कलमे वाली, अल्लाह हम सबको मौत नसीब फरमाए। तो वक्त तो हमारा ख़त्म हो गया है, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। जी। हाँ जी, एक सवाल ही पूछा हुआ है, क्या हम मरी मछली खा सकते हैं? हाँ, मरी मछली खा सकते हैं, हदीस में उसकी वजाहत आ गई है। अब उसमें एक चीज़ का ख्याल किया जाएगा कि अगर मछली के अंदर वो बदबू पैदा हो गई है, एक तो मछली पानी के अंदर अंदर रहे तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन अगर वो पानी के बाहर आ गई है और फिर वहां पर उसमें बदबू पैदा हो गई है तो मरी हुई मछली तो खा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि उसके उसका पड़ा रहना, उसके अंदर वो ताफुन पैदा हो गया है और उसकी वजह से उसका खाना इंसानी जान के लिए मुजिर है। तो लिहाजा फिर उसको ना खाएं। यानी अब एक है मरी हुई मछली समुंदर के ऊपर आ जाती है और या किनारे पर आ जाती है, साहिल पर पड़ी हुई है, तो आप उसको खा सकते हैं। तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। भले उसको ज़बह किया गया है, नहीं ज़बह किया गया है, तो वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर अगर वो बाहर पड़ी है, आप देखते उसमें बदबू पैदा हो गई है, तो हाँ फिर उसको ना खाएं, क्योंकि वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। क्या समुंदर और दरिया एक माना में लेंगे? हाँ, एक माना में लेंगे। समुंदर और दरिया एक माना में लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। क्या समुंदर का पानी से गुसल या, हाँ, तो यही तो बात समझाई गई कि समुंदर के पानी से वुजू हो सकता है, गुसल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो पाक पानी है ना। तो जब पाक है, पाक करने वाला, तो उससे गुसल भी करें, वुजू भी करें। बस पीने पीना इसलिए नहीं है चूंकि समुंदर का पानी कड़वा होता है। अगर पानी समुंदर कहीं सही है तो उसको पी भी सकते हैं, अगर किसी को कोई नुकसान नहीं देता है। तो उस हदीस का पस मंजर तो वही था। हाँ जी। क्या शिर्क और वाला भी, ये क्या है, शार और वहील भी हलाल? हाँ जी, ये भी हलाल है। ये मछलियां ही है ना जी, मछलियों के नाम है, मछलियों की अकसाम है। तो जितनी किस्म की मछलियां हैं, ये दो के तो नाम ले दिए, और बेशुमार नाम है। तो जितनी भी किस्म की मछलियां वो सारी की सारी हलाल है, सारी की सारी खाई जा सकती हैं, उनमें कोई मसला नहीं। हाँ, अब अगर समुंदर की बाज मछलियां अगर ऐसी हों कि जो जहरीली हों
اور ان کے جو سمندری پانی کے جو ماہرین ہیں، آبی ماہرین جو ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں بتا دیں کہ یہ جو قسم ہوتی ہے یہ زہریلی ہوتی ہے، تو پھر اس کو نہ کھائیں، کیونکہ وہ تو انسانی جان کے لیے پھر مضر ہو گئی نا۔ تو اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر جو جتنی بھی اقسام کی مچھلیاں ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن ہمارے دیکھنے سے اچھی لگنے نہ لگنے سے اس کے حلال حرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں ساری کی ساری حلال ہیں، وہ کوئی بھی قسم کی۔ جی جس پانی میں صابن گر جائے اور اس کا رنگ چینج ہو تو، ہاں دیکھیں یہ میں دوران سبق بھی بات میں نے سمجھائی تھی، کوئی بھی حلال چیز اگر گر جاتی ہے تو اس سے اگر ذائقہ تبدیل، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ پانی پاک ہی رہے گا، پانی پاک ہی رہے گا۔ تو صابن گرنے، صابن چونکہ وہ پاک چیزوں سے بنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ ناپاک مادے استعمال کیے گئے ہوں اس کے اجزاء، تو پاک چیزوں سے بنا ہے تو اس کو ہم بدن پر اسی لیے لگاتے ہیں نا، اس سے تو میل کچیل دور ہو جائے، طہارت اور زیادہ اچھی ہو جائے، تو اس لیے اس سے وہ اس کا رنگ اگر بدل جاتا ہے تو وہ پاک رہے گا، اس سے نہا دھو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، حلال ہے کیا؟ ایک کرب اور پروانہ، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کرب اور پروانہ کیا یہ؟ کرب انگریزی کے لفظ ہیں جی، یہ تھوڑے اردو میں لکھ دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ کیا پانی کی ساری مخلوق حلال ہے؟ ہاں، اس حدیث کے استدلال سے جو پانی کی ساری مخلوقات ہیں نا وہی حلال ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر تو صرف یہ ہے والحل میتتہ، اور سمندر کا جو بھی مردار ہے وہ حلال ہے، تو اس کا مطلب ہر جو مردار ہے وہ حلال ہے، الا کہ وہ سمندر کا ہو، پانی کا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھی باہر سے کوئی گائے بھینس سمندر میں گر کے مر جائے اور پھر وہ کہیں کہ اب بھلے مری گئی ہے تو پانی میں نا، لہذا اس کو کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں، وہ سمندر کی ہی مخلوق ہے تو ٹھیک ہے۔ شک کی صورت میں پانی پاک ہے، ہاں، شک کی صورت میں پاک ہے، یعنی کہ اب آپ کو شک ہے لیکن اس میں نہ تو اس کا ذائقہ بدلا ہے، نہ اس کی بو بدلی ہے، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، ہاں پھر شک کی صورت میں پاک ہے۔ چونکہ شک کی صورت پانی اصل میں پاک ہے اور وہ یقین ہے کہ بھی پاک ہے، تو لہذا شک سے یقین کی بات جو ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی کا وضو ہے، جب اس نے وضو کیا تھا تو اس کو یقین ہے نا میں نے وضو کیا تھا، لیکن بعد میں اس کو شک ہے پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو لہذا اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، چونکہ چونکہ شک کے ساتھ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، تو ایسے ہی شک کی صورت میں پانی کیا رہے گا؟ پاک رہے گا، جب تک پورا یقین نہ ہو جائے، ہاں پھر پانی وہ پاک نہیں ہوگا اگر یقین ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیکڑے اور جھینگے کیا یہ حلال ہیں؟ ہاں کیکڑے اور جھینگے بالکل یہ سمندری مخلوقات ہیں اور یہ بالکل حلال ہے، یہ کھائے جا سکتے ہیں۔ اور ایسی ایک اور وہ جھینگا مچھلی ہوتی ہے، کیکڑے جھینگے اور یہ ساری جو مچھلیاں ہیں یہ حلال ہیں، ان میں کوئی، اب میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی عجیب لگتی ہیں، دیکھنے میں ہم ان سے کراہت سی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وہ دیکھنے میں ہمیں کیسا ہی لگ رہا ہے، لیکن ہمارے دیکھنے سے کوئی چیز حلال اور حرام تو نہیں نہ ہوگی۔ تو اللہ پاک نے جو حلال اور حرام چیز کی، حلال اور حرام وہ تو کیکڑے جھینگے بالکل صحیح ہیں، وہ کھائے جا سکتے ہیں۔ ہاں جی، کسی اور؟ نظر آتے، ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ مچھلی نظر نہیں آتے، ہاں تو وہ قسم ہی الگ ہے نا، دیکھیں نا کیکڑا الگ چیز ہے، جھینگے الگ چیز ہے، مچھلی الگ چیز ہے، تو وہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو سمندر کی جو مخلوقات ہیں اس میں جھینگا الگ ہے، کیکڑا الگ ہے،
मछली अलग है, फिर मछली की भी आगे बहुत सारी अकसाम है, तो लिहाजा सारी हलाल है। हाँ, फ्रोजन फिश का पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई है, क्या वो? हाँ, देखिए अब इसमें मछली वो कब जबा हुई है कब जबा नहीं हुई है वो तो मसला है ही नहीं। मछली अब जब पकड़ लेंगे तो वो, उसमें ये मसला नहीं, तो वो मछली हलाल होगी, मछली आप खा सकते हैं, माँ सिवाय के अगर उसके अब औसाफ वो तब्दील हो गए, उसमें बदबू पैदा हो गई है, तो कोई मतलब इतने दिनों से मछली पड़ी हुई है, इतने दिनों पड़े रहने से उसके अंदर जहर बन गया है, तो फिर उसको नहीं खा सकते, यानी कि उसके अंदर कोई कबाहत है जिसकी वजह से उसको नहीं खा सकते, वैसे मछली को खा सकते हैं। मछली भले खुशक कर ली जाए, खुशक करके लोग मछली करते हैं, और खास तौर पर यूरोपियन जो ममालिक थे पहले पीछे जाएं, तो ये लोग मछली पकड़ते थे, और चूंकि वहां पर तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वो तो 6-6 माह 7-7 माह मछली खाते थे, पकड़ कर फ्रीज कर लेते थे, तो वो खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है कितने दिन की हो। जज़ाकल्लाह खैर शेख, आपसे पूछ रहे हैं ये लोग कि ऑयस्टर सॉस, जो सीप सीप होते हैं ना समंदर में, हाँ, उससे ये लोग एक सॉस बनाते हैं, चाइनीज कुकिंग में होता है। तो क्या वो सीपियां खा सकते हैं और उनसे जो बनने वाला सॉस है ऑयस्टर सॉस? हाँ, अब असल में वो जो सीप आप कह रहे हैं ना, मुझे उसकी कैफियत का भी पूरा पता नहीं है, वो सीप क्या है, तो ये शायद मुझसे सवाल पहली दफा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह जो हमारा वो टेलीग्राम का है ना, उस पर मैं तहकीक करके इसका जवाब मैं वहां दे दूंगा कि सीप का सूप जायज है कि जायज नहीं, इंशाल्लाह सॉस, वहां पर। सीप का सॉस, ऑयस्टर सॉस कहते हैं उसको। हाँ जी, ठीक है, इंशाल्लाह तो उसका हम जवाब अपने टेलीग्राम के नंबर पे दे देंगे, ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी। अगर मछली किसी गैर मुस्लिम ने ज़बह की हो तो, हाँ, अगर वो ज़बह जिन्होंने की है वो अहले किताब है, तो अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, वो तो कोई मसला नहीं, गैर मुस्लिम नगर की, चूंकि मछली बजाते खुद तो वो हलाल है, और गैर जो अहले किताब हैं तो अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, भले जो मछली के अलावा भी आप उनका, जो किसी ने अगर कोई बकरा छतरा ज़बह किया है, गाय ज़बह की है, तो उसका गोश्त तो उससे ले सकते हैं, क्योंकि वो अहले किताब है। जी, अगर मछली, हाँ जी, तो ठीक है, क्लास का इख्तिताम करें, अगर सवालात और नहीं है तो। ले जी, हम फिर क्लास का इख्तिताम करते हैं, तो इंशाअल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले बुध को, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।